Good morning, students. So, before starting today's class, let me tell you a few things about your essay. All of you got the timetable and the syllabus of all subjects. So, be very serious regarding your essays. Do it sincerely and regarding the time, you know the time, 3 o'clock, for example, if English exam is scheduled at 3 o'clock, you will be getting the question paper just 5 minutes before the time and read the question paper properly. And it's already mentioned that the paper will be of 1.5 hours. The sharp 4:30, we will close the group. So make sure that you complete your work first. Okay, so the paper will be almost of 1 hour 15 minutes. Do it properly, read it and send it to the group. Okay, so after 1.5 hours, the group will be shut and study the questions given for the essay properly and do it sincerely. Okay, still yesterday's video, I saw only 70 or 70 people only viewed it, but the homework I got of more than 100. So you are not cheating the teacher or the school, you are cheating yourself. Okay, so now let's see today's class. We started Should Wizard Hit Mommy, and we saw that our father Jack, the character Jack, he started a story of Roger Skunk. So the Roger Skunk was having a foul smell. That's the starting hit. Yes, so it is Joe only said to narrate the story of Skunk, but Joe did not think that such a twist will come in the story that I will be having any problem like this. Yes, Joe said. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. तो क्या हुआ कि वो इतना बैड स्मेल करते थे कि कोई भी वुडलैंड के एनिमल उनके साथ खेलने के लिए, मतलब जंगल के not even a single animal would like to play with Skunk. Okay. Joe looked at him solemnly, a very grave, serious, sad manner में. जो पापा को देखने लग गया बेचारे स्कंक के बारे में सोच के. She hadn't foreseen this. ये उन्होंने सोचा नहीं था कि स्टोरी में ऐसा होगा. Whenever he would go out to play, whenever he would go out to play, जब भी वो बाहर जाते खेलने के लिए, Jack continued with zest. Jack को बहुत अच्छा एनर्जी आ गया, एनर्जी के साथ वो स्टोरी को कंटिन्यू किया. Remembering certain humiliation of his own childhood, तो खुद का बचपन याद करने लग गया. शायद हो सकता है कि वो भी बचपन में डर्टी कपड़े पहन के जाते तो उनके फ्रेंड्स उनको इग्नोर करते थे, तो वही सोचने लग गया और उनके साथ खेलने के लिए मना करते थे. तो वो इस स्कंक की जगह अपने आप अपना बचपन याद किया उन्होंने. ठीक है. All of the other tiny animals would cry, और पूरा बाकी सारा एनिमल्स चिल्ला के चिल्लाते हैं. Oh, here comes Roger Skunk, Roger Stinky Skunk. बहुत बुरा स्मेल वाला रॉजर स्टिंकी स्कंक आ रहे हैं, भागो भागो बोल के वो लोग उधर से भाग जाते हैं. And they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone. और ये सुन के Roger Skunk बहुत उदास होकर उधर रहते हैं और बाकी सब एनिमल्स ये रहा गंदे स्मेल वाले स्कंक आ रहे हैं बोल के भाग जाते हैं. ठीक है. And two little round tears would fall from his eyes. और उनकी आंखों से दो बूंद आंसू गिरते थे. और the man of Joe's mouth dropped down, और जो ने भी जिस तरह रॉजर स्कंक का आंसू और जिस तरह वो भी एक्ट करने लगे, अपना होठों को थोड़ा नीचे भिड़ा के, मतलब चेहरे पे उदास ला के, डाउन एंड लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड, और लोअर लिप्स उदासी से वो लोअर लिप्स ऊपर बाहर की तरफ आ गया, बेंट फॉरवर्ड as he traced his forefinger along the side of the nose of one of Roger's tears. और जैक ने अपने
he took his finger near the nose और eyes of the daughter, और जिस तरह रॉजर स्कंक का आंसू आ रहा है उस तरह आंसू आ रहा है उसको पोंछ रहे दिखाते हुए जैक ने जो का आंसू पोंछ रहे ऐसा दिखाया। Won't he see the owl? तो क्या देखो आपको मालूम है सारा कहानी में जब भी कोई एनिमल को प्रॉब्लम होता है तो कहाँ जाते हैं? आउल के पास। तो एकदम से एनर्जी के साथ हमारा जो won't he see the owl? She added a high and faintly roughened voice, थोड़ा rough voice में, क्या वो आउल के पास नहीं जाओगे? Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover stuck as her legs twitched tensely. तो टेंशन के मारे थोड़ा स्टोरी का इस ट्विस्ट को फील करते हुए थोड़ा टेंशन भरा वॉइस में उन्होंने पूछा तो पैर थोड़ा हिला, पैर हिलने की वजह से वो बेडशीट में थोड़ा खिंचा, आगे पुलिंग हो गया बेडशीट में। He was pleased with this. He was pleased with this. उनको अच्छा लग रहा था कि उनका बेटी कहानी में इस तरह का अच्छा क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा है और टेंशन हो रहा है, मतलब फील हो रहा है, वो अच्छी तरह स्टोरी को ले रहा है। He was telling us something true, something, तो उनको पता लग रहा था कि वो थोड़ा अच्छा एक कहानी बता रहा है, ट्रू कहानी बता रहा है, एक मॉरल लेसन दे रहा है। He was telling us something true, something she must know, उनको लाइफ में एक अच्छा लेसन दे रहा है, ऐसे लग रहा था जैक को। And had no wish to hurry on, और उनको इस कहानी को जल्दबाजी में खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। But downstairs a chair scraped, but उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में किसी चेयर का खींचने का आवाज आ रहा है। And he realized he must go down to help Claire paint the living room woodwork। उनको याद आया कि उनके बीवी क्लेयर ने नीचे बुलाया तो उनको वो कुछ सफाई हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है फर्नीचर पे, उसको हेल्प करने के लिए क्लेयर बुला रहा था। याद आ गया कि नीचे जाना है, क्लेयर को मदद करना है। Well, he walked along very sad and came to a very big tree, और ये रॉजर्स का उदास होकर आगे आगे बढ़कर और बड़ा सा ट्री के पास पहुंच गया, और इस ट्री के सबसे ऊंची टहनी पे टिप टॉप पे, and in the tip top मतलब सबसे ऊपरी स्तर पे of the tree was an enormous wise old owl। wise old owl थे, जैसे सब कहानी में होता है इसमें भी एक wise old owl थे सबसे ऊपरी टिप पे। गुड, तो जो को पसंद आया, गुड, अच्छी बात है। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक said, all the other little animals run away from me because I smell so bad। सारा एनिमल्स मेरे से भाग जाता है क्योंकि मेरा स्मेल बहुत बैड स्मेल है, तो इसके लिए मुझे एक सोल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने आउल से पूछा, देखो सारा एनिमल्स मुझसे भागते हैं क्योंकि मेरा स्मेल बहुत बैड है। सो यू डू, तो आउल ने बोला हाँ यार तुम्हारा स्मेल बहुत गंदा है। द आउल सेड, वेरी वेरी बैड, व्हाट कैन आई डू, बहुत खराब है, मैं क्या करूँ, कैसे इसका सोल्यूशन निकालूं? रॉजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो रोने लग गया। So, my dear students, you will be expecting the question for the day. Today, no question. Today, the work is regarding a composition. I want you to do an article on any topic and send to me today itself. Okay? So, the homework for the day is write an article in 150-200 words on any topic and send to me today itself. Hope the question for the day is clear for you. In your composition, don't send me any previous work. I want today's work, write any topic. Okay, let me tell you the topic. Okay, towards the end of the class, I will give you a topic regarding the article. Okay. The wizard, तो जो ने बोला जल्दी विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड, क्योंकि जो को मालूम है सारा कहानी में एट लास्ट विजार्ड ही सॉल्यूशन लाता है। जो shouted and sat right up and little golden book spilled from the bed, वो एंग्जाइटी बहुत एंशियसली हैप्पीली बेड पे बैठा तो साइड पे रखा एक बुक गिर गया बेड पे।
नाउ जो जैसे जो जैक थोड़ा नाराज हो गया, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, ये स्टोरी डैडी बोल रहा है। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, ये स्टोरी मैं तुम्हें सुना रहा है, क्या तुम चाहते हैं कि मुझे कहानी सुनाए? तो नो यू मी, नहीं आप मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तुम तो एक काम करो, लेटो और सो जाओ। Her head relapsed into the pillow, और हेड वापस लेटा उन्होंने पिलो पे, एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, तुम्हारे खुद को तुम्हारे सिर से तुम्हारे दिमाग से तुम ही कहानी सुनाओ। वेल द ऑल थॉट एंड थॉट, तो ऑल बहुत जोर से बहुत ज़्यादा ही सोचने लग गया। एट लास्ट ही सेड, द ऑल लास्ट बोला, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, तुम एक काम करो, अभी तुम विजार्ड के पास जाओ, तो विजार्ड तुम्हारे लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है प्रॉब्लम? टू द बैड स्टिंकी स्मेल ऑफ स्टमक। ओके डैडी, तो इसके बीच में हमारा जो को थोड़ा डाउट हो गया, डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या ये मैजिक स्पेल्स, आपको मालूम है आप खटापड़ा ऐसा बोलते हैं, क्या ये मैजिक स्पेल्स रियल में होते हैं, क्या हकीकत में होता है? दिस वॉज ए न्यू फेस, एक नया ये फेस है, नया मोड आया कहानियों में, क्योंकि पहले तो वो कहानी कैसे ही सुनते थे, बट आजकल कहानी बोलने के बीच में वो डाउट्स पूछने लग गया। जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेस, ए रियल फेस आ गया है कहानी में। When he told her spiders eat bugs, spiders bugs insects को खाता है ऐसा बोला, तो she asked, she turned to her mother and asked, do they really, सही में खाते हैं क्या? And when Claire told her God was the sky and all around them, तो क्लेयर ने एक बार किसी कहानी में बोला कि भगवान हर जगह पर है, एक एक कण में भगवान है, ऐसे बोला तो उन्होंने पूछने लगा। She turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, with a clever smile के साथ उन्होंने पूछा, is it really, क्या सही में भगवान है क्या हर जगह पे? So they are really in stories, तो जब जो ने पूछा डैडी क्या मैजिक स्पेल्स रियल है, तो उन्होंने बोला कहानियों में रियल है, कहानी में ऐसा बहुत सारा चीजें मिलेगा। जैक आंसर्ड कर्टली या रूडली, ने थोड़ा रफ वे में जो जैक ने रिप्लाई दिया, क्योंकि देखो जैक बहुत अच्छा एक शानदार कहानी बनाकर बता रहे थे, तो बीच में डिस्टर्ब किया जो ने अपने डाउट से, इसीलिए वो थोड़ा इरिटेट हो गया, इसीलिए उन्होंने थोड़ा रफली बोला, ये कहानियों में ऐसे होते रहते हैं। She had made it मिस ए बीट इन द नरेटिव, मिस ए बीट मतलब नरेटिव, इस कहानी नरेट करने के बीच में एक डिस्टर्बेंस लाया। द ऑल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स, घने जंगल के बीच में से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रैक, तो दलदल वाला जगह है, उधर एक क्रैक क्रिक है। क्रिक क्या होता है देखो, तो क्रिक आप लोग भी सोच रहे हो क्या है क्रिक, तो व्हाट्स ए क्रिक, दैट्स व्हाट आवर जो आज अब आप बोल रहे कि, तो और ने बोला इस घने जंगल के बीच में से जाओ, एक दलदल जगह मिलेगा, स्वाम्पी जगह मिलेगा, और उसके पार करके क्रिक को पार करो। क्रिक मतलब इट्स ए स्मॉल रिवर। So my dear students, that's the end of today's class. So I would like you to focus on your FA1. So that's a gave you an homework regarding FA1. Write an article. Well, topic on the present pandemic COVID-19 के ऊपर एक आर्टिकल लिखना। The atrocities, the problems it caused, or the condition of the world. So the COVID-19 and the world, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिख के आज ही मुझे भेजना है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।